Hello everyone, welcome to Digital Maths. See, up to now we have started that is class 8 chapter number 11 mensuration chapter, and in that we have completed exercise 11.1 and exercise 11.2 question 1 to 5. So now we are going to go with exercise 11. Question number 6 to 11. See, this chapter is totally based mainly on mensuration, that is area and of different shapes. So you must be taking care of the different shapes को थोड़ा ध्यान में रखना है, and then you have to use the formulas. See, if your formula is correct and your calculation is totally correct, then no one can reduce your mark. कोई भी आपके marks cut नहीं कर सकता. So you should take care of calculation as well as formula. अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज आई विल लेट यू नो दैट कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व इट आउट. एंड इफ you have understood everything, सब कुछ समझ में आ रहा है, प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है, then also comment that you have understood and share this videos with maximum student so that they can learn and they can also get good results in their. So next we'll move on to the question number 6. आपके question number 6 की तरफ चलते हैं. First and the foremost thing is to read the question carefully. Question अगर आपने properly read किया है, समझ लिया है properly, then no one can think और कोई भी आपका marks wrong नहीं कर सकता अगर properly समझ ले. So find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. भाई आपको एरिया फाइंड करना है रोम्बस जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है, एक रोम्बस दिया हुआ है जिसकी साइड दी हुई है और एल्टीट्यूड. इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. भाई दूसरे डायगोनल्स की आपको लेंथ फाइंड. तो सपोज यू हैव बीन गिवन फिगर दैट इज, since rhombus is also a kind of parallelogram, so from formula of area of rhombus equals to base into altitude. सी बात है, बेस इंटू एल्टीट्यूड बोलो या फिर हम लोग हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस. बट पैरेललोग्राम जैसा ही होता है रोम्बस ऑल्सो. रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, सो वी कैन थिंक ऑफ बेस, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. सपोज जैसे कि ये रोम्बस है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ रोम्बस और ये इसकी एल्टीट्यूड दी हुई है. तो बेस एक साइड दी हुई दैट इज बेस 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड दैट इज गिवन इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर. अगेन the area of rhombus जो हो जाता है base into altitude. So base into altitude, that is 5 into 4.8, that is, so 4.8 into 5, if we are doing 5 4s are 80, 40, 5 4s are 20, 5 8s are 40, 5 4s are 20, 20 plus 4 24, 24 centimeter square is the area of the rhombus. So from this we get, so putting the values in the formula, that is base into altitude. Base आपको दिया हुआ है 5 centimeter, so 5 into 4.8, that is 24. You can multiply as we have already multiplied. आप multiplication देखा होगा. So area of rhombus is 24 centimeter. Now what is mentioned in the question? Question में क्या mention किया हुआ है वो आपको खास ध्यान रखना है. If one of the diagonal is 8 centimeter long, एक diagonal जो है 8 centimeter long है, तो find the length of the other diagonal. So as we have gone through in earlier videos, अगर earlier videos आपने नहीं देखे तो go through that videos, because in that videos we have discussed area of rhombus equals to half into diagonal 1 into diagonal 2. तो अगर area of rhombus आपके पास already है, भले हमने दूसरे formula से किया base into altitude, but area of rhombus equals to half into d1 into d2. तो 24 आपको एरिया ऑफ रोम्बस मिला, हाफ इंटू d1, d1 इज गिवन 8, डायगोनल 8 दिया हुआ है एंड d2 वी हैव टू फाइंड इट आउट. फोर्जा, तो डायगोनल 2 इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. डायगोनल 2 आपका क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर. तो hence the length of the other diagonal is 6 सेंटीमीटर, यानी जो 6 सेंटीमीटर आपके जो दूसरी डायगोनल थी उसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर. चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा. दो मेथड से हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर सकते हैं. एक तो उसको कंसीडर कर लो बेस, एज अ बेस. अगर बेस कंसीडर करते हैं तो वी हैव गॉन थ्रू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एल्टीट्यूड, ये वाला सपोज एल्टीट्यूड है 90 डिग्री. ठीक है, एल्टीट्यूड एंड बेस अगर आपके पास है रोम्बस का, तो रोम्बस के अंदर सारी की सारी साइड सेम होती है, तो 5 5 5 5, तो एल्टीट्यूड वाज 4.8.
तो 5 into 4.8 that is 24 centimeter square is the answer. ठीक है. Now question number 7 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, moving on to the question number 7, the floor of building consists of 3000 tiles. कितनी? 3000 tiles which are rhombus shaped. सारी की सारी टाइल्स का शेप क्या है? rhombus shape, and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter. और उन दोनों के डायगोनल्स क्या है? 45 centimeter 30. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square हाँ it is meter square is rupees 4. समझना पहले, ठीक है. अगर डायगोनल टाइल्स दी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी टाइल्स है वो बाद में देखते हैं, पहले एरिया ऑफ सिंगल टाइल्स फाइंड करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा. तो सपोज एरिया ऑफ सिंगल टाइल्स यानी रोम्बस अगर बात करें, उनकी डायगोनल्स इट इज गिवन. तो डायगोनल्स d1 equals to 45 centimeter, डायगोनल्स d2 equals to 30 centimeter. तो एरिया ऑफ टाइल्स यानी रोम्बस शेप जो है, तो मैं आई एम राइटिंग हियर रोम्बस एज वेल, दैट इज इक्वल्स टू हाफ into d1 into d2, that is equals to half into 45 into 30. So 2 15s are 30. So you got 45 into 15. अब 45 into 15 कितना होता है? मल्टीप्लीकेशन करके देख लो. 45 into 15 is 5 5s are 25, 5 5s are 20, 2 25, and 1 5s are 5, 4, 5, 7, 6, 675 centimeter square. 675, write properly. गड़बड़ हो जाता है कभी कभार. Centimeter square. Now how many tiles are there? Total tiles are 3000. So total area equals to 3000 into 675, क्योंकि number of tiles 3000 है. तो 3000 into 675 अगर हम लोग करते हैं तो 675 into 3, देखो तीन जीरोस है, एज इट इज मैं तीन जीरोस लगा दूंगा. तो 3 675 into 3 that is 3 5 5 3 15, 21 22 18 19 20. तो 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया. नाउ सी, ये आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर को और आपको कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर. तो यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा है वो समझ में आया कि चलो भाई मैंने 1000 इंटू टोटल एरिया ऑफ वन टाइल्स कर दिया. बट इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए याद रखो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 208 हाउ मच मीटर स्क्वायर, या फिर हम लोग उल्टा कर सकते हैं. वेट, चलो पहले यहाँ तक हम वापस एक बार बता देता हूँ. डायगोनल d1 d2 इक्वल्स टू 45 30. एरिया ऑफ वन टाइल्स यानी रोम्बस है तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो हाफ इंटू 45 इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ टोटल एरिया ऑफ 3000 tiles is 675 into 3000 that is 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ तक हमें मिल गया था. नाउ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1000 नहीं 10,000, 10,000 centimeter square equals to 1 meter square. 2025,000 centimeter square equals to 2025,000 upon 10,000. 3 zeros to 3 zeros cancel, that is 202.5 meter square. तो टोटल फ्लोर का एरिया कितना हो गया? 202.5 मीटर स्क्वायर. टोटल फ्लोर एरिया इक्वल्स टू 2,052.50 मीटर स्क्वायर. नाउ कॉस्ट. अब हमें क्या फाइंड करना है? ये हमने फाइंड कर लिया भाई, टोटल एरिया हमको मिल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल्स टू, टाइल्स को पॉलिश करना है तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल्स टू 202.50 इंटू 4. कितने रुपीज है? 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. भाई 1 मीटर स्क्वायर के 202.5 रुपीज है. तो सॉरी 1 मीटर स्क्वायर के 4 रुपीज है, 4 रुपीज है. तो 202.5 मीटर के कितने मीटर स्क्वायर के? 202 इंटू 5 4. तो जस्ट मल्टीप्लाई 202 इंटू 5 इंटू 4. जीरो आप चाहो तो रख सकते हो. तो 0 0 5 4 22, 4 8 2 8 9 10, 1 कैरी, 4 1 4 0 0 प्लस 1 कैरी, 4 2 8. डेसिमल लगा ₹810. टोटल कॉस्टिंग जो पॉलिशिंग का होगा दैट वुड बी ₹810. वापस एक बार चेक कर लो जस्ट. Cost of polishing the floor per square meter equals to 4. Cost of the floor equals to 4 into 202.50 that is equals to 810. Hence, the cost of polishing the floor
which contains 3000 tiles is rupees 810. तो यानी कॉस्ट आपका मिल चुका है, that is 800. तो क्लियर है यहाँ क्या होगा? कहीं पे भी कंफ्यूजन है, यू कैन जस्ट आस्क मी या सॉल्व डाउट कमेंट में काउट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, तुरंत आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. डोंट वरी एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग चलते हैं. मोहन wants to buy a trapezium shaped field. भाई एक क्या खरीदनी, फील्ड किस शेप में? ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम कैसा होता है आप लोग को पता ही, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट. दिस इज ट्रेपेजियम इन विच two sides are parallel. So here AB is parallel to CD. Okay. Its sides along the river is parallel to and twice the side along the road. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. भाई रोड के साइड जो है उस साइड से, सपोज ये रोड है इधर और यहाँ पे रिवर है, तो इस फील्ड की रोड के साइड जो है लेंथ उसकी सपोज x है और रिवर के साइड वाले की लेंथ ट्वाइस. ट्वाइस मतलब 2x. if the area of the field is 10500 meter square, area is given already, and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 meter, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 100 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. भाई अलोंग द रिवर कितनी साइड है? ये वाली जो साइड है वो कितनी होगी वो आपको पता. ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता होगा वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ. area of trapezium you might be knowing because we have learned, I have explained you in last video. Area of trapezium equals to half sorry, parallel side half into parallel side 1 a plus b, yani parallel side 1 plus 2 into height. Height, that is altitude, this would be height. Let's go with the figure. ये रोड साइड है, ये रिवर साइड है, एंड you have 100 meter distance, that is 100 meter distance between the two roads, that is यानी perpendicular height बोल सकते हो आप एक तरफ से, height is 100 and here if it is x तो it would be river side में 2x है. इतना मैंने explain किया था. Now area of trapezium is given. perpendicular distance equals to 100 meter, area of trapezium equals to 10500 means 10,500 meter square given. Then let the side along the road be x and the side along the river be 2x meter. तो मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई इसको x ले लो एंड इसको 2x ले लो. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इन ब्रैकेट a प्लस b इनटू हाइट. ये मैंने बताया था. इफ यू हैव लर्न तो हाफ इनटू साइड 1 पैरेलल साइड 1 प्लस साइड 2 इनटू हाइट. यू कैन टेक एनी वे. a क्या है आपका? a इक्वल्स टू x and b इक्वल्स टू 2x and h इक्वल्स टू 100 given. So just put the values. So half into x plus 2x into 100 and area कितना दिया हुआ है? 10,500. So 10,500 into ये जो 2 है डिवीजन में, it would be multiplication में, ये multiplication में 100, it would be over here equals to 3x. x plus 2x कितना होता है? 3x होता है. x plus 2x is 3x. Now 2 zeros to 2 zeros cancel. ये थोड़ा सा एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है. 500 तो 20 to 20 cancel. Now 3x equals to 105 into 2, that is 0 1 to 210. तो x equals to 70. तो आपकी x की वैल्यू मिल गई, that is equals to 70 means रोड साइड में जो आपकी लेंथ है that is equals to 70 मीटर. Now river side is 2x. 2x means that is equals to 2 into 70. 2 into 70 that is equals to 140. कितना आंसर आएगा? 140 is the side along the side of river. वापस एक बार चेक कर लो. half into a plus b into height. So 10,500 equals to half into x plus 2x because एक x है दूसरी 2x है into height that is 100. So 10,500 equals to 3x. देखो 250 ऐसे भी कर सकते हो, that is into 50. 10,500 equals to 150x. So x equals to 10500 upon 150. 0 cancel तो 1570 तो x की वैल्यू आपको 70 मिली. So which means the side along the river is 70. along the river नहीं, along the road is 70 meter and along the river it would be 140.
70 दैट इज 140 मीटर। ये याद रखना, इधर अलोंग द रिवर की जगह अलोंग द रोड लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए, गलत ना कर दो आप। मेन थिंग तो वही है, गलत नहीं होना। चलिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। शेयर करो दूसरों के साथ यार, क्विक, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर। बस लाइक जरूर कर दो, और चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह से इंडिकेशंस मिलते रहे वीडियोस के, न्यू न्यू वीडियोस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, top surface of raised platform is in the shape of rectangular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. भाई आपको पूरा फिगर दिया हुआ है, भाई एक प्लेटफॉर्म इस ऑक्टागोन शेप में दिया हुआ है, आपको इस तरह से सारी डिटेल्स दी हुई है। वैसे तो फिगर आपका टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा ही होगा नॉर्मल, ज्यादा डिटेल नहीं होगी, बट एंड टू वी हैव, मैंने क्रिएट करके रखा है कि हाँ इस तरह से फिगर बनेगा, सो आई हैव मेड दिस फिगर। तो आपको फिगर में दिखा हुआ है दिस इज 11, दिस इज 5, तो एंड दिस इज 4, और ये एक तरह से देखो ये ट्रेपेजियम है, दिस इज ऑल्सो द सेम ट्रेपेजियम एज अबोव साइड, क्योंकि रेगुलर है, ऑक्टागोन लिखा हुआ है, तो ये भी ट्रेपेजियम, दोनों ट्रेपेजियम, तो इसको फिगर 1, फिगर 2 और ये फिगर 3 समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन, octagon equals to area of figure 1 plus area of figure 2 plus area of figure 3। ये तीनों फिगर का एरिया होगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज, पहले सबसे पहले सारे फिगर्स का एरिया अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, देन वी विल एड इट। तो सपोज फिगर 1, figure 2 and figure 3, so figure 3 area is easy, so I am finding that figure 3 first of all, so area of figure 3, that is equals to length into breadth, because it is a rectangle, 11 length है, breadth is 5, so 11 length and breadth is 5, so 11 into 5 that is equals to 55 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर जो पोर्शन था उसका एरिया मिल गया फिगर 1 का। नाउ फिगर 2 एंड फिगर 1 आर डिट्टो टू डिट्टो सेम, फिगर 1 एंड 2, तो एरिया ऑफ figure 1 and 2 equals to twice area of trapezium, ठीक है, सेम है इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल्स टू 2 into हाफ। देखो अब ट्रेपेजियम के लिए दिस इज 11, ओके, एंड दिस इज 4, आपके पास एल्टीट्यूड है 11 है, बट यू डोंट हैव दिस वन, बट रेगुलर ऑक्टागोन होने की वजह से इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 मीटर अगेन, रेगुलर ऑक्टागोन है तो सारे की सारी लेंथ 5 मीटर होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, इट वुड बी रेगुलर। तो half into, wait, side 1 area of trapezium half into side 1 plus side 2 into a height, so 2 2 cancel, side 1 कितनी 5, side 2 कितनी 11, 11 क्यों ले रहा हूँ, because this one trapezium का base 11 है, into height that is 4। एक बार इसको क्लियर कर दो ताकि आपको इजीली दिखे, तो फिर बोलोगे सर ये क्या किया, कुछ पच पच हो गया। दिस इज 5 मीटर, दिस इज 11 मीटर, और ये हाइट दी हुई 4 मीटर, सो आपका हो गया 5 plus 11, ये 2 2 कैंसिल हो गया, इट वाज बिकॉज ट्वाइस वी हैव कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट ट्वाइस, 5 plus 11 that is equals to 16 into 4 that is equals to 64 मीटर स्क्वायर। तो फिगर 1 और 2 का मिलाकर 64 मीटर स्क्वायर हुआ, फिगर 3 का हुआ 55 मीटर स्क्वायर, तो टोटल इक्वल्स टू 64 plus 55 equals to 9119 मीटर स्क्वायर। So area of the octagonal raised platform is 119 meter square। चलो देखते हैं। First of all, octagon having 8 equal sides, each 5 meter given. Divide the octagon as shown in the below figure। जैसे ये फिगर में शो किया हुआ वैसे। Area of two trapezium equals to 2 into half in bracket a plus b into h। तो 2 in bracket half, a आपका है 5, b आपका है 11, तो 11 plus 5 into 4, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 4 into 16 that is 64 meter square। Now area of rectangle, because बीच वाला जो portion है that is a rectangle, area of rectangle equal to length into breadth, that is 11 to 5, that is 55 meter square। So area of octagon equals to 64 plus 55, that is equals to 119 meter square। 119 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है, क्योंकि कंबाइंड है ऑक्टागोन के अंदर, ये सारे फिगर 1 फिगर 2 और फिगर 3 तीनों ऐड करना था, दैट्स व्हाई।
समझ में आया? कोई भी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर क्यों ना हो, यू हैव टू जस्ट डिवाइड इनटू डिफरेंट शेप्स, जिसका आपको एरिया फाइंड करना इजी हो जाए, वैसे शेप में आप डिवाइड कर सकते थे। आप चाहते तो यू कैन गो विथ लाइक दिस आल्सो, सेम चीज सेम ही थी बट यू कैन गो, आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ टू कैलकुलेट। आप चाहते तो इसको भी फोर, ये फोर, ये फोर, ये भी फोर, ये भी फोर, ट्राइंगल में डिवाइड करो, ये एक छोटा रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी छोटे दो रेक्टेंगल्स बना दो, फोर और सपोज यहाँ पे बच जाता 11 माइनस फोर, फोर 8 तो 3। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल को ऐड करते, इसको ऐड करते, फिर इसको और ये चार ट्राइंगल्स को। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू डिवाइड द फिगर, बट आपको एरिया इजीली मिल जाना चाहिए। जिसका एरिया आपको याद हो उसके बेस पे आप फिगर को डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, ये रहा पेंटागोनल शेप्ड पार्क है। Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other ways of finding area? both ways मतलब ज्योति और एक और जन थे, ज्योति, मैं बता दूंगा कि इन्होंने ज्योति का डायग्राम ये रहा और कविता का डायग्राम ये रहा। ज्योति इस तरह से फाइंड करना चाहते हैं एरिया और कविता इस तरह से फाइंड करना चाहते हैं। तो इट इज अप टू यू, आप कैसे चाहोगे फाइंड कैसे करना है, क्या करना है, दैट इज अप टू यू टू सी। पहले हम लोग सपोज करते हैं ज्योति के प्लान के हिसाब से चलते हैं। इन्होंने दिया हुआ है तो मैं एक बार लिख दूं, दिस इज 15 और ये हाइट होगी, देखो ये 15 है तो ये हाइट भी 15, तो दिस इज आल्सो 15। ये बाद में हम लोग को जब रिक्वायर्ड होगी तो बता दूंगा। तो सी, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वे बाय ज्योतिष डायग्राम, तो ज्योति का डायग्राम ये रहा, तो मैं इसको क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक कीजिएगा। इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन क्लियर इट आउट। सपोज दिस इज द ज्योतिष डायग्राम, शी हैज ड्रॉन डॉटेड लाइन फ्रॉम द मिडल, कि मैं ऐसे फाइंड करना चाहती हूँ, तो इट्स हर चॉइस, बट वी हैव टू कैलकुलेट। मैंने क्या बोला, कैसे भी करो कैलकुलेट होना चाहिए। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज वन टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ से ट्रेपेजियम है जिसकी हाइट दी हुई है 30, के बेस 1 दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ साइड 1 15 और इधर का भी साइड 15। इन दोनों के बीच की हाइट, टोटल हाइट इज 15। अगर टोटल हाइट 15 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5, यहाँ पे भी हो जाएगा 7.5 इफ यू थिंक ऑफ। So, according to Jyotish diagram या by Jyotish diagram, area of park equals to 2 into area of trapezium, बोल सकते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम दोनों सेम है, यहाँ पे भी 7.5 15 15 30 30, so we can say that area of pentagon equals to area of trapezium ABCP plus area of trapezium AEDP. Now area of trapezium, that is half into, देखो यहाँ पे AP plus BC into CP and half into ED plus AP into DP, यानी साइड 1 साइड 2 जो हम बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। बट दो ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहे हैं, वैसे तो आप डायरेक्टली दो ट्रेपेजियम लेके कर सकते थे, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड एवरीथिंग इज सेम, डायरेक्टली 2 इंटू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। मैं वो तरीका भी बताऊंगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वन वुड बी इजी। ये जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ वो इजी होगा, लेट्स गो फॉर दैट। तो half into 30 plus 15 into CP, half into 15 plus 30 into DP। ठीक है, तो CP plus DP यानी आपका हो जाएगा कितना, CP plus DP कितना हो जाएगा 15 अगेन। तो half into 45 into CD, that is half into 45 into 15, क्योंकि CP plus DP पूरा CD है और CD दिया हुआ है 15। now if we multiply, भाई 45 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 25 to 5 and 5 are 25 and 4, that is 675 meter square and divide by 2, 675 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 337.5 मीटर स्क्वायर, 337.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया कैलकुलेटेड बाय द ज्योतिष डायग्राम। देखो अगर पार्क सेम है, सब कुछ सेम है, मेथड करेक्ट है, तो कविता के डायग्राम से भी आपको सेम एरिया मिलना चाहिए। एरिया ऑफ पेंटागन शुड बी 337.5 मीटर। so let's check it out now by कविता's डायग्राम। कविता का डायग्राम जो था ये 30 है टोटल, इतना 15 दिया हुआ है तो ये भी 15 हुआ और ये ऑलरेडी दिया हुआ है 15। तो एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE
plus area of square CDEB, ठीक है, BCDE करो या कोई भी करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AB इज दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला सी, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला भूलना मत। अगर याद नहीं है तो पहले याद करो फॉर्मूला को, इट शुड बी इन योर माइंड कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इनटू साइड। ओके, तो हाफ into base that is 15, height that is 15 plus side that is 15 into 15, so 15 into 15 225 upon 2 plus 225, so 225 upon 2 that is 112.5 plus 225 that is equals to 0.573 337.5 मीटर स्क्वायर। सो कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखिए, AM perpendicular 30 minus 15 that is 15, AM equals to 15, area of pentagon equals to area of triangle ABE plus area of triangle BCD square, sorry not triangle, so half into 15 into 15 plus 15 into 15 side square होता है, 1 by 2.5 plus 2.5 that is equals to 337.5 meter square. Hence total area of pentagon shaped park is 337.5 meters. See, you can check it. इससे पहले हमने जो किया था ज्योति के डायग्राम से, that was also 337.5 meter square, and by calculating with this shape or with this diagram of कविता या method of कविता, then also it remains the same. इसका मतलब दोनों ही मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, it is not an issue, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। Next, the last question of this exercise, that is diagram of the adjacent figure. Frame has outer dimension 24 cross, ये डायग्राम दिया हुआ है जिसकी फ्रेम दी हुई है आउटर डायमेंशन जिसका 24 क्रॉस 28, ये बाहर का 24 है, ये 28 है, एंड इनर डायमेंशन इज 16 by 20, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इन द विड्थ सेक्शन इज सेम, ठीक है। विड्थ सेक्शन अगर सेम है, विड्थ सेक्शन सबका सेम है, डिस्टेंस सबका सेम है, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट देखो, अगर विड्थ सेक्शन सेम है तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का एरिया सेम होगा, एंड दे आर फॉर्मिंग अ ट्रेपेजियम। देखो मैं बता देता हूँ, 28 और 20, और डिस्टेंस कितना होगा वो पहले पता करना होगा। तो दिस इज 24 एंड दिस इज 16, 24 माइनस 16 हो जाता है 8, ठीक है। तो यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 4, टोटल 4 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ी हुई है, ये चीज याद रखना। तो टोटल परपेंडिकुलर हाइट अगर हम लोग देखें तो 4 हो गया इसका। तो फिगर 1 एंड फॉर फिगर 1 एंड 2, अगर मैं देखो ट्रेपेजियम बनाता हूं, कुछ इस तरह से ट्रेपेजियम बनेगा फिगर 1 और 2 का, व्हाट लाइक दिस। तो 20 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस हाइट परपेंडिकुलर हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिगर 1 एंड फिगर 2 दोनों का सेक्शन अलग अलग फाइंड करना है, तो इसलिए मैं साथ में कर रहा हूं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, तो हाफ इंटू 20 प्लस 28 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, 48 into 2 that is equals to 96 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिगर 1 यानी जो सेक्शन 1 दिख रहा है उसका भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज आल्सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फॉर 3 एंड 4, फिगर 3 एंड 4 अगर हम लोग बात करें, सपोज मैं ट्रेपेजियम जो बनता है वो बना देता हूं, तो 24 एंड 16 एंड डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, तो half into a plus b into h that is equals to half into 16 plus 24 into 4, so 2 to the, so 16 plus 24 that is 40 into 2 that is equals to 80 centimeters, दिख नहीं रहा हो तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर हियर। तो भाई फिगर 3 का भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा और सेक्शन 4 का भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। लेट्स चेक इट आउट। Here two figures given, 1 and 2 are similar in dimension. Here figure 3 and 4 are similar in dimension. So area of figure 1 equals to area of trapezium, half into a plus b into h, that is half into 28, 28 plus 20 into 4, that is 96
सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप करना, मैंने करवाया था बट अगेन the area of figure 2 is also 96 centimeter square. Now area of figure 3 equals to area of trapezium. ये वाला फिगर 3 हो गया आपका, या फिगर 4 समझो तो सेम है। तो हाफ इंटू 16 प्लस 24 इंटू 4, so 40 into 4 that is equals to 80. Area of figure 3 is 80 centimeter square. Area of figure 4 is 80 centimeters. ये आपको हर एक सेक्शन का सेपरेटली एरिया मिल चुका। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नहीं समझ में आता है थोड़ा सा रिवाइंड करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। मैं पहले नॉर्मली सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, देन विद दी पीपीडीज, सो यू कैन गो विद इट। समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, और समझ में आ गया है, इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, देन आल्सो मेंशन दैट आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल, ताकि आपको इस तरह से इंडिकेशंस मिलते रहे। When you go in 9th standard, this channel will be also helpful to you, and 10th standard also. So अभी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि 9, 10th, 11, 12 जब भी आगे से आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। So till then, bye bye everyone.